A very Honorable Mr. Justice A.P. Sahi, President, National Consumer Dispute Redressal Commission, New Delhi. Honorable Mr. Basant Kumar Goswami, Sir, Acting President, Jharkhand State Consumer Dispute Redressal Commission. Honorable Mr. Sayyid Ansar Kaleem, Sir, President, District Consumer Dispute Redressal Commission, Karnataka. Honorable Mr. Swarn Shankar Prasad, Sir, President, District Consumer Disputes Redressal Commission, Ranchi. Professor Dr. Vijay Pratap Tiwari, Sir, Professor MNLU Nagpur, and Professor Dr. Ashok R. Patil, Sir, who's the Honorable Vice Chancellor of NUSRL Ranchi, and all the learned presidents and members of the Consumer Commission of Jharkhand. I request the participants to kindly maintain silence in the hall. The chief guest for the valedictory session, we are already have had a session with Sir, and Honorable Mr. Justice A.P. Shahi, Sir, is someone who's already a very highly recognized face in the field of consumer protection, and he requires no formal recognition or introduction. I'm sure we are all well versed. We've already had a session with Sir as well, but I would still talk about Sir's professional background in brief. After graduating in law from the Allahabad University, Honorable Mr. Justice Shahi, Sir, started his practice at Allahabad High Court itself, and due to his rise, a very steep rise in the career, he was recognized by the bar and bench, and he was elevated and he was given oath as additional judge of High Court Allahabad itself. And within a very short span, Sir was given a permanent position in the same High Court. And his career in Allahabad High Court, both the Allahabad bench and the Lucknow bench spanned over 14 years. And from there, his speedily redressal of disputes that arose before him and the cases that he had to face were recognized nationally, and he was given he took charge of Patna High Court as Chief Justice of the said High Court, and subsequently he took over as Chief Justice of the Madras High Court, where he eventually demitted office on attaining superannuation. Honorable Justice Sai subsequently took over, and his illustrious career did not end after his superannuation. In fact, he was immediately after appointed as the Director of National Judicial Academy, where he served for over 2 years. And after that, in August 2023, Sir took charge as the President of NCDRC, and he's been working, in fact, Sir has been working towards speedily disposal of disputes that come before him. And Sir was only telling me yesterday that how his target for dispute redressal is of 1,000 cases that he faces for month. So in a month, his target of dispute resolution is over 1,000, and he's been trying to achieve that ever since. So Sir, we are really honored to have you before us. And Sir, with this, I would request you to kindly give a speech to the members and the President so that we are all motivated to continue doing the good work. Sir. I request all the members keep that feedback form inside. At the end, you can write it. Otherwise, it disturbs the proceedings. Kindly keep that feedback form inside. At the end of the program, you can do that. Sir. आप सभी को पुनः नमस्कार और आपको धन्यवाद भी कि ये 3 दिन का वर्कशॉप आपने बड़ी तल्लीनता से और एक आश्रममय जीवन जैसे व्यतीत होता है उसमें आपने इसमें सहयोग प्रदान किया और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसा वर्कशॉप उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। अभी जो सेशंस आपके यहाँ अभी हुए हैं इनमें प्रैग्मेटिक सेशंस हैं, थियोरेटिकल हैं और साइंटिफिक भी। प्रैग्मेटिक सेशंस की सबसे अधिक महत्व होता है आप अपनी समस्याओं का निदान कैसे करें। और कल हम लोग जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो किसी एक माननीय सदस्य ने उस बात की चर्चा की थी, गोस्वामी जी ने भी की थी कि यदि अस्पताल में 24 घंटे अगर आप भर्ती नहीं हैं
तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा एक प्राविधान इंश्योरेंस क्लेम में बना हुआ है। कल से मुझे इसकी जिज्ञासा थी और जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा और पिपासा से ही संतुष्टि की ओर आदमी बढ़ सकता है। तो कल से मैंने अपने किसी कुछ सदस्यों से, एक आध वकील साहिबान से भी संपर्क स्थापित किया। तो पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना मुझे पता चला कि बड़ौदा में एक ऐसा मामला उठा है और उस मामले में न्यायालय ने, कंज्यूमर उपभोक्ता फोरम ने ये निर्णय संभवतः दिया है, क्योंकि निर्णय मुझे पढ़ने का मौका नहीं लगा, लेकिन कल जिस तर्क की बात हो रही थी कि 24 घंटे दाखिला होना आवश्यक है, तो मैं जब पटना में मुख्य न्यायाधीश के पद पर था तो मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ और मुझे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आके कराना था। चूंकि स्टोन का साइज बड़ा था, इसलिए हुआ कि सर्जरी तुरंत कराइए। अब छुट्टियां तो होती नहीं है और चीफ जस्टिस के लिए 2 दिन 4 दिन से अधिक गायब होना, पटना का मेरा अनुभव कुछ दूसरा ही था। वहां तो 24 घंटे क्या 48 घंटे चौकीदारी करनी पड़ती, तो हटना जरा मुश्किल होता था। तो सैटरडे संडे ही अधिक से अधिक, जैसे आज निकाल के आए, निकलना पड़ता था। तो मैंने यहाँ जो संपर्क स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो आपको 10 घंटे में घड़ी देख के छोड़ देंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये मैं आपको अपना अनुभव स्वयं बता रहा हूँ और उसी से कैसे मैंने लॉजिक डेवलप करने की कोशिश की। और जो वडोदरा वाले केस का जो अभी थोड़ा सा संज्ञान मेरे आया है, जजमेंट पढ़ लें तो संभवतः शायद वही तर्क लगेगा। हमारा काम इनोवेशन का भी है और इसलिए मैं इसको जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। वर्कशॉप्स इसीलिए कहता हूँ कि वर्कशॉप में प्रैग्मेटिज्म, ये जो हमारा निर्णय का दौर है, इसमें हमें एकदम बिल्कुल उपभोक्ता के लिए सहयोगात्मक पक्ष दिखाना है। टोटल आपका ध्यान उसी पर रहना चाहिए। तो मैंने जब संपर्क स्थापित किया तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक डॉक्टर साई हुआ करते थे, उसमें पता नहीं है कि नहीं, सर्जरी विभाग में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। तो उन्होंने कहा कि हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके और आपको 8-10 घंटे में चला देंगे। तो हमने कहा कि इससे बढ़िया, हालांकि ऑपरेशन से सभी को डर लगता है, थोड़ा सा हमें भी, कि कैसे ये क्या करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप ये कर दीजिए तो मेरे लिए बड़ा सुविधा होगा और क्या मैं वायु यात्रा करके पुनः पटना पहुंच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप 24 घंटे के बाद तो तुरंत ही करके आप वापस घर चले जाएं, कोई काम नहीं। मैंने ठीक उन्हीं के कथा अनुसार, यहाँ पर अंत में मैं आऊंगा, कुछ फेथ और ट्रस्ट की भी बात करूंगा। तो देखिए, डॉक्टर्स के प्रति थोड़ा सा होना चाहिए, जैसे जुडिशरी के प्रति आम आदमी का ट्रस्ट फेथ होता है, तो वैसे हमें भी। हमने ट्रस्ट किया और गए। ट्रस्ट किया, उन्होंने बताया कि ये साक्षात है, ये करके इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं शुक्रवार की शाम को दिल्ली पहुंचा हूं, सीधे एम्स में भर्ती हो गया। शनिवार को सुबह 7 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया और उन्होंने लैप्रोस्कोपी करके, कट तो नहीं लगाया, वो 3 जगह छेद करते हैं, लैप्रोस्कोपी करके, और उन्होंने पूरा का पूरा स्टोन बिना तोड़े निकाल लिया। उसका साइज अच्छा खासा था, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, काफी बड़ा साइज। बहरहाल निकाल लिया उन्होंने। और निकालने के बाद 4-6 घंटे के बाद जरा नौजिया खत्म हुआ। रात को 10 बजे उन्होंने कहा कि अब आप चाहें तो यहाँ रात में रहें और चाहें तो आप बिहार सदन चले जाएं, वहीं अपना विश्राम करें। मैं 10 बजे रात को ऑन मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज होकर के बिहार सदन में पहुंच गया। दूसरे दिन शाम की फ्लाइट हमने बुक की और 48 घंटे के अंदर मैं गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा के पटना वापस था।
ये 24 घंटे की जो बात है, आप देखिए लॉजिकली इसको टेस्ट करने की बात है। वडोदरा में जो केस हुआ है उसके अखबार का क्लिप मिला है, और वो अखबार का क्लिप है क्या नाम है, रमेश चंद्र सोनी के नाम से है। अभी उसका पूरा मुझे ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन उस अखबार के क्लिप के ब्यौरे से मिला है, जाके निकलवा लेंगे। तो अखबार के पढ़ने से ऐसा लगता है कि देखिए लॉजिक क्या है, 24 घंटे का क्या लॉजिक है कि 24 घंटे जब आप अस्पताल में भर्ती रहेंगे तभी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। क्यों, क्या कारण है? मैं 24 घंटे के अंदर अस्पताल के बाहर हो गया, मेरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं आज के युग में जिनका इलाज घंटों में हो जाता है, उसमें 24 घंटे रुकने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो तर्क क्या कहता है? तर्क यही कहता है कि अगर वो इंश्योरेबल क्लेम है तो ये टाइम पीरियड से कैसे उसको आप डाइल्यूट कर देंगे? उसका कोई संपर्क कुछ है ही नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस बीमारी का हो रहा है, इंश्योरेंस मेडिकल क्लेम का हो रहा है, समय का नहीं हो रहा है। तो 24 घंटे का क्लॉज मैंडेटरी नहीं माना जाए, इट विल बी डायरेक्टरी। मेरा अपना ये कहता है, लॉजिक कहती है कि ये कोई नेक्सस नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है इसको समझने का कि 24 घंटे में अगर किसी का इलाज हो गया तो उसका मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम बीमारी होते हुए भी नहीं मिलेगा। तो हम इंश्योरेंस किस चीज का करा रहे हैं? बीमारी का करा रहे हैं। और आज की विज्ञान की प्रगति में तो मैंने आपको अपना ही उदाहरण दे दिया कि 24 घंटे में अस्पताल के बाहर हो गए। तो मेरा तो सरकारी मान लीजिए मिल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का जिसने बीमा कराया है उसे क्लेम 24 घंटे अस्पताल में रहना आवश्यक है क्या? और दूसरी चीज मैंने उनसे पूछा भी कि अस्पताल में आप क्यों नहीं रखते? कहा साहब आप लोग वीआईपी हैं, एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन लग जाएगा तो हम लोगों को लेना देना पड़ जाएगा। तो जितने देर आप हॉस्पिटल में रहेंगे उतना ही रिस्क, और आपसे मिलने 70 लोग आएंगे, कोई फूल लेके आएगा, कोई कुछ करेगा, दुनिया भर की बातें होती हैं, इसमें कोई ऐसा अप्राकृतिक चीज नहीं है। रिश्तेदारी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो आप रोक नहीं सकते, इसलिए आप हॉस्पिटल से बाहर जाएं। सीधी सी बात यह है। और वहां तो पहुंचना लोगों के लिए जरा मुश्किल होगा। आप पटना पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही कोई नहीं मिलेगा, फोन से सभी पूछ-पाछ लेंगे। नहीं, अस्पताल में देखने की एक प्रथा है हम लोगों के यहाँ कि हम जाके खुद देखेंगे, चाहे कुछ कर पाए चाहे न कर पाए। तो ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन से आप बचेंगे। कहने का अर्थ 24 घंटे का समय का कोई तात्पर्य रहता ही नहीं। तो यदि तर्क के आधार पर ऐसा कोई नियम आपके समक्ष आता है तो तार्किक तरीके से उस पर आप अपना निर्णय देने में कतई संकोच न करें, क्योंकि विवेक का पहला आधार क्या है? क्या है? कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस जस्टिस का ही फोरम है, और इसीलिए प्रबल संभावनाओं के आधार पर ही आप, तो कहने का मतलब यदि इंश्योरेंस इस तरह के टर्म्स को रखती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये टर्म नैसर्गिक न्याय अथवा तार्किक न्याय अथवा किसी भी न्याय के सिद्धांत से पोषित नहीं होता है, समर्थित नहीं होता है, अतः हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो आप अपना निर्णय हो सकता है, बात ऊपर के लोग जाएं गलत पाएं सही पाएं, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट में 142 में निकल ही जाएगा, 200% निकल जाएगा। तो मेरा ये मानना है, अब उस निर्णय की आप लोगों ने जो उठाया था, अगर मुझे वो निर्णय की प्रति मिल गई तो हम गोस्वामी जी को जरूर भेज देंगे। नहीं, हमारे यहाँ से ये कैंसिल कर दिया था जी। तो हम लोगों ने पार्टी के फेवर में, कंज्यूमर के फेवर में डिसीजन दिया है उसको। अच्छा, देवघर मैं भी था जी आधा घंटा। हाँ, आप ही ने तो कहा था कल शायद। हाँ, अब बताइए ये आधे घंटे की देरी का तो कोई मतलब नहीं। तो इसमें लग जाता है टाइम बिलिंग में। हाँ, बिल्कुल सही आपका कहना है। ये परसेप्शन तो बिल्कुल सही है। तो मेरे समझ से आपने सही किया है, और इस तरह के निर्णयों से बहुत से, अभी हम उसी पर आ रहे हैं, ट्रस्ट और फेथ की बात करेंगे। दूसरा, विज्ञान की प्रगति का ध्यान निश्चित रखिए, इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार
बहुत से विधिक निर्णयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी भी गाड़ी के क्लेम का सवाल उठता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का सवाल उठता है, तो इसमें आप टेक्निकल नॉलेज का पूरा सहयोग लें और उसको पढ़ करके तब करें, तो उससे आपके फैसले में मजबूती आएगी। जैसे कि आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, हम लोगों के समक्ष एक ये आया कि फोक्सवैगन एक गाड़ी होती है, तो फोक्सवैगन गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल हुई डिस्ट्रिक्ट स्टेट फोरम महाराष्ट्र में, ये कहते हुए कि साहब इसका एयरबैग का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ और लिहाजा ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सीधे लड़ने पर इसको खुलना चाहिए था, नहीं खुला, हमारा इतना नुकसान हुआ, इसलिए इतना इतना ये मिलना चाहिए। उसमें जब लिटरेचर आया स्टेट कमीशन के सामने, तो उन्होंने देखा कि उसमें कई चीजें उन्होंने लिखी थी कि इम्पैक्ट सीधा होना चाहिए, गति इतनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर के ऊपर की गति होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हुई तो स्टेट कमीशन ने यही सवाल किया जो गोस्वामी जी भी कर रहे हैं कि साहब तो सारा पर्पस बेकार हो गया। 20 के बजाय अगर 19.5 किलोमीटर की स्पीड थी और वो नहीं खुल रहा है, तो जो इंजरी हुई है या जो लॉस हुआ है उस आधे किलोमीटर की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही लॉस हुआ है जो 20 किलोमीटर पर होता है। तो अब क्लेम वैलिड नहीं है, इसकी बात शुरू हो गई, लेकिन स्टेट कमीशन ने उसको दिया। लेकिन आधार क्या लिया, आप देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उस व्यक्ति ने वो लिटरेचर निकाला जो जिस पीरियड में एक्सीडेंट हुआ था, उस पीरियड में फोक्सवैगन कंपनी ने अपनी 3000 गाड़ियों का रिकॉल किया था, और इसलिए रिकॉल किया था कि वो जो सेंसर सिस्टम उसमें काम सही नहीं कर रहा था, जिसके वजह से ये कमियां आ रही थी, तो वो सेंसर सिस्टम डिफेक्टिव था। तो ये उसने देखिए, अब उस कंज्यूमर ने या उनके वकील ने मेहनत करके ये चीज निकाला कि साहब ये देखिए आपने क्यों ये गाड़ियां रिकॉल की थी, आप बताइए इसका कारण, फीडबैक भाई 3000 क्यों आपने गाड़ियां रिकॉल की। तो उस आधार पर फिर स्टेट कमीशन ने कहा नहीं, स्पीड नहीं, देयर वाज ए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एंड हायर स्पीड्स पर भी गाड़ियां चलती हुई नहीं खुली, इसका ये प्रमाण है। तो फिर प्रबल संभावनाएं, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस चीज को आप अपने में कूट के भर लीजिए। आप सीधे डायरेक्ट एविडेंस की बात, आप लोग चूंकि जुडिशरी से आते हैं, बार बार आपको एविडेंस एक्ट ढकेलेगा कि नहीं साहब ये स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल केस ये है ही नहीं है, इट इज अ टॉर्चरस केस वेयर यू हैव टू, एकदम बिल्कुल इसी प्रबल संभावनाओं के आधार पर। लेकिन प्रबल संभावना के लिए भी आधार होना चाहिए, ये नहीं कि निराधार हो कि हम ऐसा समझते हैं तो ये होगा, नहीं, कयास, सरमाइजेस एंड कंजेक्चर्स नहीं, देयर शुड बी समथिंग टू सपोर्ट दैट सरमाइज। तो एक चीज तो ये हो गई, और हमने ये कहा कि टेक्निकल चीजें, टेक्निकल दुनिया में एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण रखा गया। तिवारी जी ने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सी चीजें बताई होगी। ये इस बात का परसेप्शन अपने दिमाग में ये रखिए, मशीन इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मैन, दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट, it cannot be. The reason is this will lead to extinction of humankind. So machine को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट है? मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए कहा गया क्योंकि वो डेटा और एल्गोरिथम्स से समर्थित है। लेकिन अगर आपने डेटा ही गलत डाल दिया तो एल्गोरिथम गलत हो गया, तो वो कहां से सत्य हो गया। तो इसलिए इस बात की पूरी प्रबल संभावना है, और पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेल के बारे में एक एल्गोरिथम बनाया गया, और ऐसा बन गया कि उसमें जितने भी अश्वेत व्यक्ति थे उनकी बेल खारिज होने लगी। फिर वो पकड़ में आया कि देखिए इन्होंने डेटा गलत फीड कर दिया, इसलिए ये बायस्ड व्यू। तो मशीन बायस इज अ वेरी डेंजरस थिंग,
इसको आप निश्चित रूप से जान लीजिए। तीसरी चीज ये है कि मशीन बायस तो होता ही है, क्या मशीन के पास इमोशंस हैं? क्या उनके अंदर कोई मानवता नाम की चीज है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं? तो हृदय से किसी भी चीज को समझने की जो शक्ति मनुष्य में है, वो उसमें हो सकता है धीरे धीरे आते आते डेटा इतना मिल जाए कि वो आपकी मदद करें, लेकिन सिर्फ आपकी वो मदद करें, सब्स्टिट्यूट न हो जाए। तो लिहाजा इस बात का ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप का, आपको सीधा सा उदाहरण देते हैं। व्हाट्सएप में आपके पास, किसी के पास एप्पल होगा, किसी के पास i+ होगा, व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा रहता है और ये एकदम फर्जी है। ये आप निश्चित जान लीजिए, ये साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि ये बिल्कुल फर्जी है। आपका जितना प्राइवेट इंफॉर्मेशन है गूगल के पास सब मौजूद है, कोई प्राइवेसी नहीं है। आपकी अंतरंग से अंतरंग बातें उनके पास सब उपलब्ध हैं। और ये बात अलग है कि विश्व में बहुत क्रांति आ जाएगी अगर उसका इस्तेमाल वो करने लगे, लेकिन इस गलतफहमी में कतई न रहिए कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, कुछ नहीं है। उसका हम आपको उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ नेशनल डिजिटल अकेडमी में आए थे और इन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। व्हाट्सएप मैसेज फेक हो सकता है, मैसेज भी फेक किया जा सकता है। ये दोनों चीजें उन्होंने साइंटिफिक तरीके से करके दिखाया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मालदीव और बांग्लादेश के जजेस आए थे, तो उनसे किसी से नंबर पूछे तो कोई बताया ही नहीं। तो एक ने हिम्मत करके अपना नंबर दिया और उनको फेक मैसेज उन्होंने भेज के कहा कि आपने ये तो हमको मैसेज भेजा था। कहने साहब हमने तो आपको, हम आपका नंबर ही नहीं जानते हैं। कह देखिए हमारे पास सब आया है, हाउ डू यू से इट इज रॉन्ग। मेरा कहने का मकसद दूसरा है, ये तो मुकदमे में बाद में तय होगा कि ये फेक है, लेकिन पहले तो सफाया हो जाएगा। आपके यहाँ अगर कोई फेक मैसेज आता है व्हाट्सएप से, तो उसकी गहन रूप से जानकारी कर लीजिए, तब उसके आधार पर बढ़िए। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रगति तो कर गया है, लेकिन आपकी व्यवस्था में अवनति लाने में भी देरी नहीं करेगा। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसलिए आपको कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी करना अति आवश्यक है। इससे परहेज मत कीजिए, इसके बारे में जानिए। जहां भी सीखने को मिले उसको, जैसे ईद दाखिला का आज आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था, अब ये लगेगा बैठते बैठते कि अरे यार इतना बटन दबाना है तो आदमी परेशान हो जाएगा। पहली भावना तो यही आएगी, कंज्यूमर की तो और आएगी। लेकिन अगर आप जान लेंगे एक बार, तो आप उसको आसान तरीके से समझा सकते हैं कि देखो भाई ये कोई झंझट की चीज नहीं है, ये सरलता के लिए है। तो इसका उपयोग सरलता से कैसे किया जाए, इसके लिए पीछे मत हटिएगा। इसको जानने की, भाई आप इस पर आप सीरियल देख रहे हैं, इस पर आप सिनेमा देख रहे हैं, इस पर आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप हर चीज तो कर रहे हैं इस पर। और जब न्याय का काम करने का आया तो आप कहेंगे साहब हम नहीं सीखेंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? तो कोई कठिनाई नहीं है। तो ये माइंडसेट की बात है कि किस काम के लिए आप इसका प्रयोग ले आए। आप जरूर प्रयोग ले आइए, उसमें मत चूकिए, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने मनुष्यत्व का जो भी भावना, जो सोचने का और समझने का तरीका है, उसको इससे गिरवी न रखें। उसमें उस तरह के निर्णय, जैसे अभी अस्पताल के 24 घंटे वाला हम लोग कर रहे थे, तो डेटा क्या आएगा? हाँ 24 घंटा नहीं है, खत्म, क्लेम डिसमिस्ड। लेकिन जब आपने उसमें तर्क देके उसको बनाया, इनोवेट किया, तो यहीं आपका रोल एज अ जज आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत एडवांटेजेस हैं। डेटा आज के विश्व में, ये आप पटल में जान लीजिए, जितनी महान शक्तियां हैं पूरे विश्व में, पहले किस चीज के लिए लड़ी? जमीन के लिए लड़ी। उसके बाद लड़ाई अभी आते आते न्यूक्लियर वॉर पर आई, फिर ऑयल का वॉर हुआ। आज की तारीख में सिर्फ डेटा का वॉर होगा। जिसके पास सबसे अधिक इसका डेटा होगा वही विश्व विजयी होगा। और उसमें आप अभी बहुत पीछे हैं। क्यों है पीछे? उसका एक छोटा सा कारण आपको बता दे रहा हूं। विश्व में 13 जगह रूट सर्वर्स हैं। रूट सर्वर्स जहां पर सारी व्यवस्था इसका लेन देन, यूं समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है। 13 रूट सर्वर्स हैं विश्व में, जिसमें से एक भी हिंदुस्तान में नहीं है
और 140 करोड़ जनता इसका इस्तेमाल करती है। चाइना में नहीं है। कहाँ है? 13 में से 9 अमेरिका में, 1 स्वीडन में, 1 जापान में, 1 ऑस्ट्रेलिया में और 1 किसी यूरोपीय देश में। यानी 13 में से एशिया में तो 1 भी नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपके पास तो टेक्नोलॉजी है ही, आपके पास वो स्रोत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में जब रह रहे हैं तो अभी आप बहुत पीछे हैं। आगे होने के लिए आप वर्ल्ड के सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक टेक्नोलॉजी या जानकारी या आपके पास स्रोत नहीं है। तो उस स्रोत में ये इजाफा करने के लिए मैंने इसीलिए उस पीपीटी जब चल रहा था तो दखल इसीलिए दिया कि देखिए कोई चीज छूटे नहीं। हमें जो जानकारी है इसको हम अपने अनुकूल बनाएं। ये अनुकूलता बहुत आवश्यक है। जैसे कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पूरा अमेरिका से उठा के यहाँ छाप दिया और उसी के आधार पर आज बहुत से कानून बन गए हैं। उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन है कि हम विदेश से कुछ ले तो ले रहे हैं। जैसे आपको एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 भी है। इंग्लैंड का कानून वहां खत्म हो गया 1999 में, 2001 में हमने अपना लिया। ये कोई मतलब है? तो हमारे यहाँ इस तरह की भी चीजें होती हैं। लेकिन हम अगर बुनियादी तौर पर देखिए, आप आधारशिला है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आधार है, तो यहीं से अब शुरू होगा। और कंज्यूमरिज्म में आप मुकदमे से अब आप लदते जाओगे, ये निश्चित आप जान लो। अगर अवेयरनेस हो गई, ई दाखिला थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, तो आप देख ही रहे हैं फल वाला सब्जी वाला कौन नहीं करेगा। तो आपके ऊपर मुकदमे लगते जाएंगे, लेकिन आपको निस्तारण त्वरित गति से अब करना पड़ेगा, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुकदमे होते हैं, तो उसमें भी एक फॉर्मूला आ जाता है, तो आप 80% मुकदमे आप निकाल सकते हैं, डिस्पोजल कर लेंगे। 20% में दिक्कत आएगी, विचार विमर्श करके उसको भी आप कर लेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ द नीड ऑफ द डे। अगर आप इसको नहीं अपनाएंगे तो वर्ल्ड में जितना भी कंज्यूमरिज्म आज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई बैरियर नहीं रह गया है। ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और बैंक फ्रॉड्स, किसी का 3,000 रुपया गया, ग्रामीण बैंक में गया मान लीजिए, तो जामतारा क्या है आप जानते हैं? तो जामतारा को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इसको भी बोझ न समझिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हवा नहीं है। जैसे सब जगह विश्व में इसकी प्रगति हो रही है, हम लोग भी चाहें तो इसको अप्लाई करके, इसकी प्रगति को मॉनिटर करके, अपने में अपना करके उसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब जहाँ तक सवाल उठता है हमारे काम वाम करने का, तो काम तो हमें देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। सुबह उठ से रात तक देखिए, जज जो होता है 24/7 होता है। वो ये नहीं कह सकता कि साहब हम 10 से 4 वाले जज, तनख्वाह कम मिल रही है, अधिक मिल रही है, ये हम सब जानते हैं। उसके लिए अलग से कार्रवाई चलती रहेगी, वो दबाव हम बनाते रहें। लेकिन जहाँ तक हमारा न्यायिक दायित्व है, उसमें कहीं कमी ना आने पाए। जितना हो सके, जितना आप दे सकते हैं, ये समाज की सेवा है। और इसी के साथ मैं अब अंतिम चरण में आ रहा हूँ कि देखिए, नारा लगता है ना, सबका साथ सबका विश्वास। ये नारे तो सब राजनीतिक और आज के जमाने के लिहाज से हैं, लेकिन जहां तक न्यायिक व्यवस्था का प्रश्न है, आज गांव का सबसे गरीब आदमी भी अगर कभी उद्वेलित होता है तो कहता है चलो तुमको हम हाईकोर्ट तक लड़ाएंगे, ऐसी बात करता है। यानी आज भी उसको इतना विश्वास है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके प्रति जो निष्ठा और ये जो आधार बना है, इसको घटने न दें। और ये आप अपनी मेहनत से, अपने विवेकपूर्ण निर्णयों से और एक मदद करने की भावना से, न कि किसी को दंडित करना या किसी को नकारना, ये इस भावना के बजाय बल्कि सेवा की भावना से कि जिसका जो
whatever is due to anybody should be given. और यही जस्टिस है, यही न्याय है। और हम आपसे ये कहेंगे कि अपनी समस्याओं का, चाहे वो लीगल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, अपने अध्यक्ष के महोदय से, स्टेट अध्यक्ष के महोदय से, उसको आप हमारे पास तक भेजते रहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह का यदि संपर्क हमारा सीधा आपसे बना रहेगा तो बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। ये एश्योरेंस भी बहुत बड़ी ताकत है। एश्योरेंस का तो ये हम लोग बना ही रहे हैं, इसका पूरा माहौल बना दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग, जो भी आपकी समस्या हो, खासतौर से न्यायिक समस्याएं जो होती हैं, उसका तो जरूर समाधान कराइए। अभी हम लोग गए थे पटना, तो पटना में जो हमारे विभागीय सचिव हैं, वहाँ सामने आई बात कि साहब डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में जैसे किताबों की बात हो रही थी कि पाटिल साहब की किताब जरूर रखें, लेकिन जो जर्नल छपता है, सीपीजे है जैसे, तो सीपीजे का ऑनलाइन वर्जन, वहाँ पर हमने कहा 7,000 रुपये या 8,000 रुपये का ऑनलाइन वर्जन एक है। तो हमने कहा भाई हर जिले प्रेसिडेंट के यहाँ एक अगर ऑनलाइन वर्जन का लाइसेंस पहुँच जाएगा तो उससे सब सदस्य काम चला देंगे, इतना देख लेंगे। तो ये उन्होंने तुरंत वहीं पर सैंक्शन कर दिया और मुझे लगता है कि बिहार में बहुत जल्द सब जगह सीपीजे का लाइसेंस हर जिले में पहुंच जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ऑनलाइन की मिलती थी और हाँ, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से तो आपको ये सुविधा भी मिल जाएगी। इस तरह का प्रस्ताव आएगा, हम उसको प्रेषित करके, उन्होंने तुरंत 7,000 रुपये 30 जिले हैं, साल भर में 2,10,000 रुपये तो हुआ केंद्र सरकार के लिए, कोई ये बड़ा भारी पैसा नहीं है, लेकिन ये समस्या का समाधान तो है। और एक चीज और जरा सा अपने उससे निकाल दीजिए, स्टेनोग्राफर्स नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, फैसला लिखाना बंद कर देंगे ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका समाधान निकालें, डिक्टाफोन इस्तेमाल करें और अपने राज्य सरकार के ऊपर ये प्रभाव डालें कि आपको अगर लैपटॉप मिलता है तो उसमें डिक्टाफोन की अगर सुविधा रहेगी तो वो सस्ता ही दे दें, सस्ता वाला ही दे दें, एप्पल ना दें, तो उससे काम चलेगा। वाणी करके सॉफ्टवेयर डाला है, हाँ डाला है, हमने उसको टेस्ट किया, 2-3 जजमेंट लिखाया, हमको उसमें करेक्शन बहुत हाँ कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब उसको फिर वो लोग नया इसको और अपडेट कर रहे हैं। वो आप बताते जाएंगे तो अपडेटिंग होती रहेगी, 2-4-6 महीने तो में ये अभी ऐसा माने हमको सिस्टम भेजना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वाणी अपडेटेड वर्जन आ रहा है, करेक्ट। हम उस पर काम किए, याद है ना? हाँ, तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा। उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपकी ई फाइलिंग है, न्यू केसेस में आप नंबर डाले 22/23 खुल गया। अब 22/23 में वकील साहब का कुछ बहस शुरू हुआ, अब आपने ठीक है ऑर्डर लिखा है, हाँ, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उन्हीं का वो तो फाइल खुल गई ऑटोमेटिक, आप बोलते जाएंगे वो नोट होता गया। नोट होता है। नो नीड ऑफ स्टेनो, नो नीड ऑफ इरेजर, पेंसिल, पेंसिल। आप खुद एडिट कीजिए और काम खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत काम कर रही है। तो ये है कि समय लग रहा है और हमारे पास भी फंड आने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपके जिलों में, सर ने सीपीजे ऑनलाइन कहा, उसका हमने भी विचार किया था, पिछली बार नहीं ले पाए थे फंड क्राइसिस के चलते, और नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि इस पर भी फंड हो जाएगा। हालांकि हम तो सर इसके एसएससी ऑनलाइन के लिए बोले थे, नहीं ये आप अगर अगर भेजेंगे ये हो जाएगा तो केंद्र से भी हो सकता है ये मदद मिले। तो ये जहाँ तक वर्कशॉप्स का ये सब, यही मेरा मकसद है कि ये इनपुट्स आपसे मिलेंगे तो आपकी वर्किंग कंडीशन में कैसे इम्प्रूवमेंट ले आया जाए, क्योंकि आपके ऊपर बोझ बढ़ने वाला है, ये निश्चित आप जान लीजिए। फाइलिंग बढ़ रही है और आपको निर्णय देने होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस पर अभी तक खरे उतरे हैं, आगे और निखरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such an inspirational speech. Sir, I think you have almost wind up all the sessions which we have seen in the last 3 days, especially on artificial intelligence and protection of consumers. Thank you so much, sir. It was really interactive session with you. Thank you so much once again. Now coming to the most important aspect of the 3 days training program is Just a minute. Before that, whatever state government issues are there, where we can get the central government help, so you just discuss with the Goswami sir on behalf of National Law University. I will send directly to the cabinet minister and secretary
how best the help we can get from Government of India, we will get it. Thank you. ठीक है. Thank you, sir. Coming to the appreciation and recognition part, now I would request Honorable Mr. Justice A.P. Sai sir to kindly distribute the certificates to the members. Before that, I request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Ashok R. Patil sir, to kindly give certificate of appreciation to Honorable Mr. Justice A.P. Sai sir. Karim sir. Shri Syed Ansar Kaleem. Thank you, sir. Swarna Shankar Prasad. Shri Shwan Shankar Prasad ji. Honorable Goswami sir. Naresh Prasad Kevat. Shri Naresh Prasad Kevat sir, Registrar sir. Myself. Professor Dr. Vijay Pratap Tiwari sir. Subir D- Kumar. Dr. Subir Kumar. Shubham. Miss Soni Bhola. आप कैसे आएंगे? आपका नाम मैं अनाउंस करता हूँ. आप मिस अनुष्ठा सक्सेना. हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी. I have special thanks. मेरा बोर्डिंग पास भी निकलवा करके भेजा. जरा हमारा भी निकलवा दीजिएगा. Ranjit Narayan Singh. Shri Shyam Kumar Mahato.